Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Bless you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Bless you, Lord Jesus of Nazareth. Bless you, Lord Jesus of Nazareth. Bless you, Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. Lord, we glorify your name. Lord, we magnify your name. Hallelujah. We exalt you, Lord. We exalt you, exalt you, exalt you. We give you praise, Lord Jesus of Nazareth. We give you praise, Lord Jesus. Give you praise, give you praise. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Lord, we bless you, bless you, bless you. We magnify you, Lord. We come into your presence, Lord, through the blood shed on the cross of Calvary. And Father, we thank you for the precious blood of the Lamb. We thank you for the precious and holy blood of Jesus. Thank you for the precious and the holy blood of Jesus. Thank you for the precious and the holy blood of Jesus. We come right under the blood of Yahushua HaMashiach. Father, we come right under the blood of Yahushua HaMashiach. Father, we come right under the blood of Yahushua HaMashiach. Father, we come we come right under the blood. Father, we come right under the blood. Father, we come right under the blood. Father, we come right under the blood of Yahusha, blood of Yahusha, blood of Yahusha, blood of Yahusha. Father, we come under the blood of Yahusha. We call upon the blood of Yahusha. Hallelujah, hallelujah. We call upon the precious blood of Yahusha. Hallelujah. We call upon the precious blood of Yahusha HaMashiach. Father, we call upon the blood of Yahusha. 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 We call upon the holy blood of Yahusha. Father, we call upon the holy, holy, holy blood of Yahusha. We call upon the holy blood of Yahusha, holy blood of Yahusha. Hallelujah. Lord, we bless you. We praise you. Hallelujah. Let's all pray. आइए हम सब दुआ करें. Jesus, we bless your holy name. We praise you, Jesus of Nazareth. We exalt you, King of glory. We magnify your name. Thank you for your goodness. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for your kindness and love, Lord Jesus. Thank you. We bless you, Lord. We bless you. We bless you, Lord. We bless you, Lord. We bless you, bless you, bless you. We praise you, Jesus of Nazareth. 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 We praise your holy name. 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 Lord Jesus, we praise your holy name. Lord Jesus, we exalt you. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus, we come before your throne of grace and mercy, Father. Father, we exalt the name of Yahushua HaMashiach, the name above all other names, the only name that you have given under heaven, whereby all mankind might be saved. We lift up that glorious name of Yahushua HaMashiach. We exalt that precious name, Father. Father, flood our hearts with the fragrance of that glorious name. Pour out the unction that is hidden in that mighty name of Jesus. Lord, we pray for your fresh presence. Fresh presence. Lord, fresh presence. Your fresh presence to be poured out upon your people who are connected via internet in different places, Lord. I pray, Lord, in the mighty name of Jesus, flood every heart. Lord, flood every heart with your presence, with your anointing. Flood every heart, Lord. Flood every heart with your presence. Hallelujah. Tera dhanyavad ho.
प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे महान कामों के लिए, तेरे छुटकारों के लिए, प्रभु यीशु मसीह तेरी भलाइयों के लिए, तेरी करुणा के लिए। लॉर्ड वी ब्लेस यू। लॉर्ड यू आर सो ग्रेशियस, यू आर सो काइंड, यू आर सो merciful, you are so loving, Lord. Hallelujah. We thank you. We thank you, Jesus of Nazareth. We thank you, Abba Father. We thank you, Ruach HaKadosh. We thank you for your presence. We thank you for your precious blood. We thank you for your glorious word, Lord, that you have given us. We praise you, Lord. तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु। तेरे वचन की ओर जब निहारते हैं, तू हमारी आंखें खोल, हमारे हृदय खोल खुदावंद। तेरे कलाम को खुदावंद तू हमारे दिल की तख्तियों पे लिख खुदावंद। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। इमैनुअल सोहोता जी, जय मसीह की, जय मसीह की। सुनीता कौर फ्रॉम ब्रिटेन, आपको, आपके घराने को, सबको जय मसीह की। हालेलुया। रूबी संगेरा जी, जय मसीह की। द लॉर्ड ब्लेस यू। ललित मेहरा जी, जय मसीह की। सुनीता नार, लाइट ऑफ जीसस, जय मसीह की। साहिल भाई, जय मसीह की। अनीता रानी, जय मसीह की। जसवंत सिंह, जय मसीह की। हालेलुया। सैमुअल लिविंगस्टन जी, जय यीशु मसीह की। गुरप्रीत सिंह, जय यीशु मसीह, जय यीशु मसीह की। ब्रदर रमन जी, जय यीशु मसीह की। हालेलुया। ब्रदर रवि प्रकाश गुप्ता जी, जय यीशु मसीह की। हालेलुया। हरपाल बाजवा जी, जय मसीह की। वी हैव ए वेरी वेरी लॉर्ड। हालेलुया। एक अद्भुत वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में, प्लीज़ नोट्स बनाइएगा, नोट्स बना, आपको बहुत आशीष मिलेगी इन वचनों के द्वारा। इनका अध्ययन कीजिए। हालेलुया। You know, keep a notebook with you and a Bible handy. Open up scriptures when I quote them and take down, jot down, important points that I give you. This will be a wonderful, wonderful journey for you if you continue to make a journal. If you continue to make, write every little notes of all the teachings that I give you, it will be like a Bible college, I'm telling you. Hallelujah. Let us look into Luke's Gospel. लूका रचित सुसमाचार में हम चलें। Hallelujah. Gospel according to Saint Luke. लूका रचित सुसमाचार, उसका 4th chapter. Hallelujah. और उसके 16 वचन से पढ़ता हूँ, Luke 4:16 से। सुनिए। And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. यीशु मसीह नासरत में आए और अपने गांव में जो जूइश सेनहीड्रन थी। आपको मालूम, जब इजरायली लोग बैबलोन में चले गए, टेम्पल तो डिस्ट्रॉय कर दिया नबूकदनेस्सर ने। उनके पास कोई टेम्पल नहीं था, कोई आर्क ऑफ द कवनेंट नहीं था, कोई गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस नहीं थी, कोई मनोरा नहीं था, कोई टेबल ऑफ शू ब्रेड नहीं था, कोई लेवर नहीं था, कोई ब्रेजन ऑल्टर नहीं थी, कोई कुर्बानियाँ नहीं होती थी, कोई बर्ंट ऑफरिंग, कोई नजराने नहीं चढ़ाए जाते थे। तो जूइश लोगों ने बैबलोन में जाके दे स्टार्टेड सिनेगॉग्स, आराधनालय। तो वापिस आके भी उन्होंने आराधनालय बनाए। तो यीशु मसीह आराधनालयों में जाता था। यहाँ पे लिखा एज इज कस्टम वॉज, जैसा कि उसकी रीति थी। हालेलुया। आपको मालूम, प्रभु की संगति करना स्वर्गीय रीति है। ये मनुष्य की बनाई परंपरा नहीं है, रिवाज नहीं है, मनुष्य का रिचुअल ट्रेडिशन नहीं है। यहाँ पे लिखा एज हिज कस्टम वॉज। तो वो गया, एंड यहाँ पे लिखा एंड देयर वाज डिलीवर्ड अनटू हिम द बुक ऑफ प्रॉफिट ईसायास, एंड व्हेन ही हैड ओपन द बुक ही फाउंड द प्लेस वेयर इट वाज रिटन।
उसे यशाया का स्क्रोल दिया गया लेदर का। यीशु मसीह ने यशाया के स्क्रोल को एग्जैक्टली उस जगह पे खोला जहाँ पे क्या लिखा था, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, यहोवा का रूह मेरे ऊपर है, बिकॉज ही हैथ अनॉइंटेड मी, क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है, टू प्रीच द गॉस्पल टू द पुअर। मैं आपको यीशु मसीह की 5 सेवकाइयाँ बताने जा रहा हूँ। 5 ministries of Jesus. 1, 2, 3, 4 and number 5. 5 powerful, uniquely anointed and heaven ordained ministries of the Lord Jesus Christ. Ministries that Jesus didn't develop on the earth. It came as a mandate from heaven. स्वर्ग से 5 सेवकाइयाँ जो यीशु मसीह को दी गईं, उसके विषय पे आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में से बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये पढ़ा, सुन लीजिए पूरा क्या पढ़ा। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज ही हैथ अनॉइंटेड मी टू प्रीच द गॉस्पल टू द पुअर, ही हैथ सेंट मी टू हील द ब्रोकन हार्टेड, टू प्रीच डिलीवरेंस टू द कैप्टिव and recovering of the sight to the blind, to set at liberty that them are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Hallelujah. यीशु मसीह ने यशाया की पुस्तक में से पढ़ा, लेकिन जो वर्स नंबर 19 है, पर्पसली आधी पढ़ी यीशु मसीह ने। यीशु मसीह 19 वचन में कहते हैं, टू प्रीच द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा के एक्सेप्टेबल साल का मैं प्रचार करूं। ये कौन सा यहोवा को मन भाता हुआ साल था जिसका यीशु मसीह प्रचार करने आए? लेकिन यीशु मसीह ने आधा वचन छोड़ दिया। वहां पे लिखा है, टू प्रीच द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड एंड द डे ऑफ द वेंजेंस ऑफ अवर गॉड, और हमारे परमेश्वर यहोवा के क्रोध और न्याय के दिन का प्रचार करूं। बट यीशु मसीह ने क्रोध और न्याय के दिन को आधा डिलीट कर दिया पर्पसली, क्योंकि जब यीशु मसीह आए इस पृथ्वी पे, यीशु मसीह क्या प्रीच करने आए हैं? यहोवा के मन भावते साल का प्रचार करने। आपको मालूम ये वर्ड क्या है असल में? द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड, हिब्रू वर्ड है योवेल। योवेल, जहां से अंग्रेजी का शब्द निकलता है जुबली। यीशु मसीह ने कहा जुबली का प्रचार करने के लिए। आपको मालूम जुबली क्या है? सुनिए ध्यान से, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं 5 तरह की सेवकाई पे मनन करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने इसराइलियों को ये कहा कि 6 साल भूमि पे हल जोतना, 7वें साल भूमि को विश्राम करने देना। यहोवा ने कहा, मैं 6ठे साल तुम्हें इतनी फसल दूंगा कि 7वें साल दबा के खाओगे तो भी बच जाएगा। लेकिन ग्रीड, इंसान के दिल में ग्रीड होती है, समझ रहे हैं आप? लालच, मटेरियल चीज़ों को इकट्ठा करने का लालच। आपको मालूम, इसी को कल मैंने आपको बताया, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय के 3, 4, 5 वचन में बताता है कि यही जो संसार की चीज़ों की लोलुपता है, लालच है, एवरेस है, यही है मूर्ति पूजा। दिस इज आइडोलेट्री, ये है मूर्ति पूजा। तो प्रभु ने इजरायलियों को ये चाहा कि इजरायलियों के अंदर कॉन्शियसनेस ना हो, ग्रीड ना हो, संसार की चीज़ों की भूख ना हो। तो प्रभु ने चाहा कि 7वें साल पृथ्वी विश्राम करे, और प्रभु ने फिर उनसे कहा कि 7 साल को 7 बार गिनना। 7 ईयर्स, फिर 7 ईयर्स, फिर 7 ईयर्स, फिर 7 ईयर्स, 7 साल 7 साल 7 साल, 7 बार गिनोगे तो 49, 49 साल हो जाएंगे। उसके बाद जो 50वां साल आएगा उसे जुबली का साल कहा गया। प्रभु ने कहा, चांदी की तुरियां फूकी जाएंगी, 100 तुरियां फूकी जाएंगी। जब तुरी की आवाज़ गूंजेगी, जितने गुलाम होंगे वो कूदने और नाचने लगेंगे, क्योंकि उनकी गुलामी ख़त्म। बंधुआई में बंधे लोग आज़ाद। अगर किसी ने किसी को ज़मीन बेची, वो वापस पहले मालिक के पास पहुंच जाएगी। अगर किसी ने किसी का कर्जा देना, कर्जा माफ। अद्भुत साल था जुबली, 50वां साल। जुबली में सब कुछ माफ़ी। यीशु मसीह ने जब प्रचार शुरू किया भाई और बहनों, वो जुबली का साल था। परमेश्वर
मानव जाति के कर्जे क्षमा कर रहा है। हमारा अपार कर्जा था पाप का, अधर्म का, लानतों का, गंदे घिनौने कामों का, हमारे पूर्वों के द्वारा संचित किए गए श्राप, हमारे पुरखों की इकट्ठी की गई लानतें जो हमारे डीएनए में हमें तोहफे में मिली थी। हर अंधकार, हर बोझ, हर कर्जा जो विरासत में मिला वो जुबली के साल में क्षमा कर दिया गया, तुरही फूंक दी गई। यीशु मसीह जुबली का प्रचार कर रहे हैं। आपको मालूम, परमेश्वर समय को जुबलियों में गिनता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं गिनता परमेश्वर जुबली में गिनता है। जब परमेश्वर कहता है 6 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में, जल प्रलय लाने से पहले परमेश्वर का दिल बहुत दुखी है, क्योंकि मनुष्य के हृदय के विचार जवानी से गंदे हैं, और परमेश्वर ने फैसला किया है कि सारी मानव जाति को पृथ्वी से यहोवा परमेश्वर मिटा देगा। तो यहोवा परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर कहता है इंसान की उम्र 120 साल होगी। तो वहाँ से लोग अनुमान लगाते हैं कि 120 साल की आयु के विषय में, लेकिन परमेश्वर आपको मालूम क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि मैं 120 जुबलियाँ दे रहा हूँ इंसान को। 120 गुना 50, 6000 साल पृथ्वी पे दे रहा हूँ। 6000 साल में परमेश्वर की पूरी योजना मुकम्मल की जाएगी। हम 6000 साल की पूर्ति की तरफ जा रहे हैं भाई और बहनों। 120 जुबलियां हमें मिली हैं। हालेलुया। तो ये जुबली का प्रचार है जो यीशु मसीह कर रहे हैं, छुटकारे का, कर्जे माफी का, हर तरह का कर्जा माफ। आपका जीवन बहाल हो गया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जुबली के लिए वर्ड है योवेल, और जो 7 साल के बाद रेस्ट आती है 7वें साल की, उसे कहते हैं शिमीटा। हिब्रू में बोलते हैं शिमीटा। 7 शिमीटा के बाद योवल आता है, युबली। हालेलुया। तो प्रभु ने युबली का प्रचार शुरू किया, और 5 सेवकाइयाँ यीशु मसीह की आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जल्दी से ध्यान कीजिए। सबसे पहली बात प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु क्या कहते हैं? बिकॉज ही हैज अनॉइंटेड मी टू प्रीच द गॉस्पल टू द पुअर। गॉस्पल, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं पिता ने मुझे अभिषेक किया है ताकि मैं गरीबों को, निर्धनों को सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। आज के बहुत से प्रचारक कोई रुचि नहीं दिखाएंगे निर्धनों और गरीबों में, लेकिन यीशु मसीह को पिता ने अभिषेक किया ताकि यीशु मसीह कंगालों को लिखा है सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। तो सबसे पहली यीशु मसीह की सेवकाई है साल्वेशन, मुक्ति। यीशु मसीह की 5 सेवकाइयां हैं, लेकिन सबसे पहली सेवकाई है यीशु मसीह की मुक्ति। तो मुक्ति की सेवकाई के 2 बिंदु हैं यहाँ पे। पहला है प्रीच द गॉस्पल टू द पुअर, कि प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। मेरी आवाज कम आ रही है आप लोगों को? अभी आवाज सही आ रही है? बताइए मुझे, आपको मेरी आवाज सही आ रही है? हालेलुया। तो सुनिए ध्यान से। पहली सेवकाई यीशु मसीह की साल्वेशन। 5 तरह की सेवा है। पहली है साल्वेशन, मुक्ति। इसके 2 पॉइंट हैं। पहला, प्रीच द गॉस्पल टू द पुअर, मैं गरीबों को बल्कि कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। और दूसरा, टू प्रोक्लेम द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा के खुशी के साल का प्रचार करूं। अभी मुक्ति का दिन है, अभी, राइट नाउ। आज इसी घड़ी नजात की घड़ी है। परमेश्वर लोगों को एक्सेप्ट कर रहा है, किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा परमेश्वर। अब वो एक्सेप्ट कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा रिजेक्शन के विषय में भी। परमेश्वर सबको एक्सेप्ट कर रहा है। वचन में लिखा है, the days when God winked at sin, but now commands all men everywhere Jesus. हालेलुया। परमेश्वर चाहता है सब यीशु मसीह को ग्रहण करें और नजात
और मुक्ति के तोहफे को सेंत मेंत में ग्रहण करें। यह नजात का, मुक्ति का जो तोहफा है, परमेश्वर का वरदान है, ये मुफ्त में मिला है, फ्री में मिला है। इसे सब एक्सेप्ट करें, ग्रहण करें। हालेलुया। तो पहली सेवकाई मुक्ति की, नजात की। दूसरी यीशु मसीह की सेवकाई पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की। हालेलुया। मुक्ति पाने के बाद, नजात हासिल करने के बाद, नया जन्म पाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात पवित्र आत्मा में भरपूर होना। आपको मालूम भाई और बहनों, ये जो एज चल रही है इस समय, सबसे कम अगर शिक्षा दे रहे हैं ना झूठे शिक्षक, वो है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पे। कोई नहीं सिखा रहा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में। पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा से मामूर होना, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु के लिए पवित्र और धर्मी जीवन जीना, ये कोई नहीं सिखा रहा। प्रॉस्पेरिटी सिखा रहे हैं, दौलत, कैसे अभी रिसेशन चल रहा है पृथ्वी पे, फाइनेंशियल मेल्ट डाउन आ रहा है, आप कैसे मनी ग्रो करो अपनी, ऐसे झूठे अपोस्टल सिखा रहे हैं कि कोरोना वायरस के दौरान हाउ यू कैन बिकम मल्टी मिलियनेयर। ये उनके कंधों पे बोझ है स्वर्ग से, ये विजन मिला है उन्हें स्वर्ग से, ये आत्मा के अंदर बोझ है जब पृथ्वी पे मानव जाति धड़ाधड़ पताल की ओर जा रही है। ये बोझ है कि लोग अमीर कैसे हो जाएं। प्रॉस्पेरिटी। यीशु मसीह की सेवकाई की सबसे इंपॉर्टेंट बात है होली स्पिरिट का बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा की भरपूरी। पवित्र आत्मा की भरपूरी आपको पाप पे जयवंत करेगी। जब तक आप पवित्र आत्मा से भरेंगे नहीं, पवित्र आत्मा की कुव्वत आपके ऊपर वास करेगी नहीं, जब तक पवित्र आत्मा की अग्नि का बपतिस्मा आपको नहीं मिलेगा, आप कभी भी पाप पे जयवंत जीवन नहीं जी सकते। परमेश्वर चाहता है आप जयवंत जीवन जिए। 3 बातें प्रभु कहता है उन लोगों को जिन्हें प्रभु गले से लगाएगा और अपने साथ सिंहासन पे बिठाएगा राज्य करने के लिए, और जिन्हें परमेश्वर कॉरोनेट करेगा, क्राउन रखेगा जिनके ऊपर। वो लोग कौन हैं? वो जिन्होंने फल पैदा किया, वो जो फल लाए, जिनका फल बना रहे, और वो जो वफादार रहे। और तीसरी कैटेगरी वो जो जय पाए पाप पे, इस शरीर की वासनाओं पे, संसार की वासनाओं पे और अधोलोक की शक्तियों पे विजय हो, उन्हें प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट यीशु मसीह की सेवकाई का बिंदु है होली स्पिरिट बैप्टिज्म। जीसस को क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज ही हैथ अनॉइंटेड मी। होली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा की आग से ओत पोत थे प्रभु यीशु मसीह। संपूर्ण परमेश्वरताई सदैव यीशु मसीह में वास करती है। और वचन में लिखा है यीशु मसीह को पवित्र आत्मा नाप तोल के नहीं दिया गया, संपूर्ण पवित्र आत्मा की भरपूरी यीशु मसीह में समा गई। हम सबको अभिषेक पाने की जरूरत है, यीशु मसीह की मानंद पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की भरपूरी दोनों अलग अलग बातें हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको एक बार मिलता है, लेकिन आप पवित्र आत्मा से रोज रोज भरते हैं। ये फ़ोन है ना जो मैंने अपने हाथ में पकड़ा, जिससे ये ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मुझे ये रिचार्ज करना पड़ेगा क्योंकि इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे हमें बार बार पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा की कुव्वत से। द थर्ड थिंग दैट जीसस टॉक्स अबाउट हिज मिनिस्ट्री is the recovery of the sight to the blind. The third thing there was, like a prominent hallmark in the ministry of Jesus was that he came to restore the sight to the blind. वो अंधों की आंखों को खोलने के लिए आया। तीसरा बिंदु यीशु मसीह की सेवकाई का, to restore the sight to the blind. यीशु मसीह हालेलुया लोगों को चंगा करने आया भाई और बहनों, आत्मिक रीति से आंखें खोलने आया
और शारीरिक रीति से चंगा करने के लिए आया है। यीशु मसीह की सेवकाई का तीसरा जबरदस्त बिंदु है चंगाई। आंखों को खोलना, बंद आंखें, आत्मिक आंखों को भी खोलना और शारीरिक आंखों को भी खोलना, चंगाई देने, हमारी देह को नरोआ करने के लिए। वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। भजन संहिता 103 में लिखा है, परमेश्वर पहले आपके अधर्म को, आपके पापों को, आपके गंदे घिनौने श्रापों और बंधनों को तोड़ेगा परमेश्वर, उसके बाद आपकी देह को चंगा करेगा। क्योंकि बहुत बार आपकी देह रोगी है ही इसलिए क्योंकि अंदर पाप के बीज पनप रहे हैं। तो जब पाप अधर्म यीशु मसीह अपने लहू से धो के क्षमा कर देगा, आपका शरीर चंगा होने लग जाएगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपकी देह को नरोआ कर देगी। हालेलुया। और परमेश्वर आपके मुंह को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा और आपकी जवानी को उकाब की तरह नया करेगा। ना केवल परमेश्वर आपको चंगा करेगा बल्कि आपकी यूथ को रिस्टोर करेगा, आपकी जान को खड्डे में से निकालेगा, आपके सर के ऊपर करुणा का मुकुट रखेगा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो चौथी बात यीशु मसीह की सेवकाई में क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे लिखा है टू प्रीच डिलीवरेंस टू द कैप्टिव। जो जकड़े पड़े हैं, जंजीरों से बंधे पड़े हैं, जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, जो स्टॉक के अंदर बंधे हुए हैं, जिनको अंदरूनी और बाहरी बंधनों ने जकड़ के रखा है, यीशु मसीह उन्हें डिलीवर करने आया है। यीशु मसीह की सेवकाई का चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है डिलीवरेंस। छुटकारा देने आया है यीशु मसीह। भाई और बहनों, वो छुटकारा देता, उसने हमें छुटकारा दिया है रोगों से, बीमारियों से, लांतों से। उसने अपने लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया। वो हर बंधन से जकड़े को छुटकारा देता है। हालेलुया। यीशु मसीह आजाद करने आया है। यीशु मसीह बंधन में जकड़ों को आजाद करता है, डिलीवरेंस। चौथी चीज डिलीवरेंस। और पांचवी जो अद्भुत बात यीशु मसीह की सेवकाई की है, पांचवा बिंदु चाहता हूं, यहां पे लिखा है टू सेट एट लिबर्टी देम दैट आर ब्रूज्ड। उन्हें आजाद कर दे जो कुचल दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं। पांचवी अद्भुत बात यीशु मसीह की सेवकाई की, पांचवी बात क्या है? इमोशनल हीलिंग। यीशु मसीह आपको अंदर से मानसिक चंगाई देने आया है। आपके जीवन के हर एक भावनात्मक पहलू को यीशु मसीह नुरोआ करने आया है, चंगा करने के लिए आया है। हालेलुया। यीशु मसीह की सेवकाई के 5 केंद्र बिंदु मुक्ति, और दूसरा मैंने बताया पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तीसरा शारीरिक चंगाई, चौथा छुटकारा, पांचवा आंतरिक चंगाई, इमोशनल चंगाई, स्पिरिचुअल चंगाई, आपकी भावनात्मक चंगाई। ये सब कुछ चंगा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। यहां पे लिखा है टू सेट एट लिबर्टी देम दैट आर ब्रूस्ड एंड टू हील द ब्रोकन हार्टेड। यहां पे लिखा है सेंट मी टू हील द ब्रोकन हार्टेड। यीशु मसीह कहते हैं मैं टूटे दिल वालों को चंगा करने के लिए आया हूं। यीशु मसीह की सेवकाई का अद्भुत एक पहलू है जो आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं। टूटे दिलों को चंगा करने आया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपका दिल जीवन में टूटा है? हम सबका दिल टूटा है जीवन में। यीशु मसीह टूटे दिलों को चंगा करने आया है। वो क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? क्या कहते हैं? ही हैथ सेंट मी टू हील द ब्रोकन हार्टेड। उसने मुझे भेजा ताकि टूटे दिलों को मैं चंगा करूं। टू सेंट, ही हैथ सेंट मी टू हील द ब्रोकन हार्टेड। आपको मालूम यहां पे अद्भुत ग्रीक वर्ड है जो मैं अभी आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट टर्न इट ऑफ। हालेलुया। तो यहां पे एक अद्भुत वचन है टूटे दिल के लिए, जो ग्रीक में लूका फिजिशियन था, और लूका की गॉस्पेल में
आप देखेंगे लूका की गॉस्पेल की एक इमेंस लिटरेरी वैल्यू है। बहुत ही लर्नड व्यक्ति था लूका, और बहुत सिलेक्टेड ग्रीक वर्ड को लूका इस्तेमाल करता है अपने सुसमाचार में। तो यहाँ पे टूटे दिल के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहोवा पिता ने मुझे भेजा है टूटे दिल वालों को चंगा करने के लिए, मैं उन्हें चंगा करूं। टूटे दिल के लिए यहाँ पे जो वर्ड है, जो ग्रीक वर्ड है, वो है सुन त्रिबो कार्दिया। सुन त्रिबो कार्दिया। सुन त्रिबो का मतलब होता है तोड़ देना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। जैसे एक मिट्टी का बर्तन है, आप जोर से मारे, या पोर्सिलेन का एक वास है खूबसूरत, उसे जोर से मारें, या कांच की कोई चीज है उसे फर्श पे जोर से मारें, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। सुन त्रिबो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, शैटर कर देना। और कार्दिया वो वर्ड है ग्रीक का जहां से कार्डियोलॉजी वर्ड निकलता है, हार्ट। हालेलुया। यीशु मसीह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए दिल जो हैं, बिल्कुल क्रश हो चुके हैं, टूट चुके हैं, बियॉन्ड रिपेयर हैं, जिन्हें चंगा नहीं किया जा सकता, संसार कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है दिल। यीशु मसीह उस दिल को इकट्ठा करते हैं, अपने लहू के साथ उस दिल को जोड़ देते हैं, अपने पवित्र आत्मा की ग्लू से उसे नुरुआ कर देते हैं, और अपने कलाम की कुदरत के द्वारा उसे मेंड करते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब व्यक्ति का दिल टूट जाता है, शटर हो जाता है, आपको मालूम कौन सी स्पिरिट, कौन सा आत्मा व्यक्ति के अंदर वास करने लगता है? टूटे दिल वाले व्यक्ति के अंदर एक रूह आता है जो उसके अंदर वास करने लगता है। उस आत्मा का नाम है स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन, तिरस्कार करने का रूह। आपको रिजेक्ट कर दिया गया, आपको ऐसे लगता है मैं किसी काम का नहीं रहा, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, तुच्छ जाना गया, मुझे किसी ने ग्रैंड नहीं किया, अस्वीकार कर दिया मुझे, उसे बोलते हैं स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन। ये जो रिजेक्शन का आत्मा है, इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। रिजेक्शन का रूह 100% लोगों के अंदर वास करता है, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आप अपने जीवन में रिजेक्ट हुए, हम सब रिजेक्ट हुए हैं। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो रिजेक्शन का ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसे हम लेके पैदा हुए हैं जगत में। आपको मालूम हमें रिजेक्ट किसने किया है? आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे सुन के। हम रिजेक्ट किए गए यहोवा परमेश्वर के द्वारा। क्यों? क्योंकि हम पाप में पैदा हुए, हमारे अंदर सिन नेचर थी, पाप का स्वभाव था। और यहोवा परमेश्वर, हबक्कुक 1:14 पढ़िए, पाप जैसी घृणित चीज को यहोवा देख भी नहीं सकता। हालेलुया। तो हम पवित्र परमेश्वर की, अति पवित्र परमेश्वर की पवित्रताई ने हमें रिजेक्ट कर दिया था। तो वो रिजेक्शन लेके हम जगत में पैदा हुए, क्योंकि पाप की सिन नेचर के कारण। अब मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूं, बहुत अलौकिक वचन है, जल्दी से मेरे साथ निकालिए। मैं परमेश्वर की रिजेक्शन आपको दिखाना चाहता हूं कलाम में से, द रिजेक्शन ऑफ गॉड। गिनती की पुस्तक निकालें जल्दी से, गिनती की पुस्तक, बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की पुस्तक नंबर्स, उसका 14 चैप्टर, गिनती की किताब का 14 अध्याय और उसका 34 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। नंबर्स 14 एंड वर्स नंबर 34। ये जो वचन आपको मैं दे रहा हूं, ये बहुत गहरे हैं, बहुत डीप हैं, ये आम कहीं से आपको नहीं मिल जाएंगे। हम सुन रहे मेरी बात? बहुत से ऑनलाइन आप देख रहे होंगे, बट यू वोंट गेट दीज ट्रेजर्स। दे आर वेरी डीप प्रेशियस पर्ल्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। तो पढ़ें इन्हें। गिनती की पुस्तक के 14 अध्याय का 34 वचन सुनिए क्या कहता है प्रभु यहां पे। गिनती 14 का 34। आफ्टर द नंबर ऑफ द डेज इन विच ई सर्च द लैंड, even 40 days, each day for a year, shall ye bear your iniquity, even 40 years, for ye shall know my breach of promise. Hallelujah.
प्रभु क्या कहता है इज़राइल से? प्रभु कहता अब 40 दिन के मार्ग को मैं 40 साल में बदलूंगा। और ओरिजिनल हिब्रू में आपको मालूम क्या लिखा है? एंड फ्रेज में लिखा माई ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। ओरिजिनल हिब्रू कहती है यू शैल नो माई रिजेक्शन। मैं तुम्हें त्यागता हूं और ये त्यागे जाना क्या होता है ये तुम जानोगे, यहोवा कहता है उनसे। हिंदी में लिखिए, प्लीज टाइप कीजिए क्या लिखा है हिंदी की बाइबल में। लेकिन 14 के 34 का एंड पार्ट जो है वो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे 40 दिन को 40 साल में बदलूंगा, सजा दूंगा, ताकि तुम जानो कि मैं कैसे रिजेक्ट करता हूं, सो दैट यू मे नो माई रिजेक्शन। हालेलुया। होशे नबी की पुस्तक निकालिए, होशे नबी की पुस्तक, होशे नबी की किताब में आइएगा। हालेलुया। होशे नबी की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, उसका 3 वचन। होशे चैप्टर नंबर 8 एंड वर्स नंबर 3। सुनिए प्रभु क्या कहता है। इज़राइल हैथ कास्ट ऑफ द थिंग दैट इज गुड, द एनिमी शैल परसू हिम। यहोवा कहता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए एक दरवाजा खुल गया है, अब शत्रु तुम्हारा पीछा करेगा, क्योंकि तुमने मुझे रिजेक्ट किया है। किसे रिजेक्ट किया है? यहोवा को। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम बहुत सारे लोगों के अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड होते हैं, इमोशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड। इमोशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड होते हैं लोगों के अंदर, अंदर किले होते हैं, भावनात्मक किले, इमोशनल किले होते हैं, जिनके अंदर लोग कैद होते हैं। उनके जीवन में जो घटनाएं घटी होती हैं बचपन में, जवानी में, या उनके जीवन में वो अपने प्रियजनों से जो घाव मिले होते हैं, उनको जख्म मिले होते हैं, या बिट्रेयल मिला होता है, धोखा मिला होता है, या किसी ने रिजेक्ट किया होता है, या उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत दर्द भरी होती हैं। वो उस दर्द को अंदर ही दफन कर लेते हैं, उसकी ग्रेव बना लेते हैं। कुछ लोग तो उसे एक बहुत खूबसूरत कमरे के अंदर रखते हैं और पिटी पार्टी करते हैं, समय समय पे उसको निकालते हैं और थोड़ा सा दर्द एंजॉय करते हैं, पिटी करते हैं, या फिर उन लोगों को ढूंढते हैं जिनके संग वो पिटी सेलिब्रेट कर सकें, क्योंकि शैतान नहीं चाहता लोग उससे निकलें और आज़ाद हो जाएं। उसी इमोशनल बॉन्डेज के अंदर जो उनके अनुभव होते हैं, अनुभवों की कैद के अंदर शैतान बांध के रखता है लोगों को। तो मैं आपको बताता हूं, इंसान की बॉन्डेज, मनुष्य के जीवन में जो भावनात्मक बंधन है, उनकी सबसे बड़ी वजह है रिजेक्शन, त्यागे जाना। आप त्यागे गए और त्यागे जाने की कैद के अंदर शैतान ने आपको बांध के रखा हुआ है। हालेलुया। और आपको मालूम रिजेक्शन से कुछ चीज़ें पैदा होती जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ रिजेक्शन से क्या पैदा होती है? एंगर। मैंने अपने जीवन में देखा, मुझे बहुत क्रोध आता था, अभी बहुत कम हो गया है। तो मैंने डिस्कवर किया कि क्रोध की वजह जो होती है, रूट कॉज होती है प्राइड। लेकिन अगर हम उसे आगे फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो एंगर या आउटबर्स्ट ऑफ एंगर या रेज जो होती है इंसान के अंदर, उसकी वजह कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन मिलेगी, क्योंकि आप रिजेक्ट कर दिए गए। पहला सैमुएल 15 अध्याय के 26 वचन में, फर्स्ट सैमुएल 15:26 में सैमुएल शाऊल से कहता है मैं तेरे संग नहीं जाऊंगा अब, क्योंकि यहोवा ने तुझे त्याग दिया है, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगा। तो शाऊल टेरेबली रिजेक्टेड फील करता है। शाऊल तो खैर अपनी इमेज को ज़्यादा प्यार करता है, परमेश्वर की हजूरी को प्यार नहीं करता, दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा को ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए शाऊल नहीं चाहता कि सैमुएल नबी पहाड़ से
उसे छोड़ दे और पहाड़ के नीचे खड़ी इस्राएली प्रजा जान ले कि यहोवा ने शाऊल को छोड़ दिया है। उसकी दृष्टि में लोगों की अप्रूवल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोग क्या कहेंगे, कई बार अपने जीवन में ऐसे फैसले लेते हो ना, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं लोग क्या कहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है यहोवा का कलाम क्या कहेगा, यहोवा का वचन क्या कहता है, पवित्र आत्मा क्या कहता है, स्वर्ग का परमेश्वर क्या कहता है। ये डिसाइडिंग फैक्टर है आपके जीवन में सही निर्णय लेने के लिए। लोग क्या कहेंगे ये नहीं है, ये मैंने नहीं रखता। प्रभु का कलाम क्या कहता है ये मैंने रखता है। तो क्या हुआ, जब वो रिजेक्ट हो गया, रिजेक्शन का स्पिरिट आया, तो पहला सैमुएल 19 अध्याय का 9 वचन पढ़िएगा। फर्स्ट सैमुएल 19:9, यहोवा की ओर से एक स्पिरिट आई, ईवल स्पिरिट। इंग्लिश की एक वर्जन में लिखा है डिस्ट्रेसिंग स्पिरिट, लेकिन ये बदरू है। रिजेक्शन बदरू के लिए डोर खोलता है लोगों के अंदर। अपने आप पे पिटी करते रहना, सेल्फ पिटी, पिटी पार्टी करना, अपनी पिटी पार्टी की एक कैद के अंदर बंद रहना, फिर आप इनसिक्योर हो जाते हैं। दूसरा जो चीज रिजेक्शन पैदा करती है वो होती इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी समझते हैं आप? इनसिक्योर वो व्यक्ति है जो हमेशा लोगों की नज़र में अप्रूवल चाहता है कि लोग मुझे जाने, लोग जाने मैं कुछ हूँ, मुझे लोग अप्रूव करें। तो यदि उस व्यक्ति को रिकग्निशन नहीं मिलती, लोगों के आगे मान सम्मान नहीं मिलता, तो उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। आपको मालूम मसीहों के अंदर कैसे झगड़े होते हैं कि कन्वेंशन की, भाई कन्वेंशन का जो पोस्टर बनाया उस पर मेरा नाम नहीं लिखा। कुछ कहेंगे जी मेरा नाम तो लिख दिया पर मेरी फ़ोटो नहीं छापी पास्टर जी ने। जब उन्होंने वर्ड ऑफ थैंक्स बोला तो मेरा नाम नहीं लिया, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया लोगों के आगे। ये इनसिक्योर फीलिंग है इंसान के अंदर। इनसिक्योरिटी हमेशा रिकग्निशन ढूंढती है लोगों से, यहोवा से नहीं। जो सिक्योर लोग होते हैं वो नौकर का काम कर सकते हैं। इनसिक्योर बंदा कभी भी नौकर नहीं बन सकता। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए, हालेलुया, नौकर बन के और डूलॉस बन के, बंधुआ गुलाम बन के धोए, क्योंकि पांव धोने का काम सबसे घटिया किस्म के नौकर का था। जो यीशु मसीह बना, रब्बी का चोगा उतार के रख दिया और उसने बंधुए गुलाम का टावल अपने इर्द गिर्द लपेटा और चेलों के पांव धोता है। और क्या लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में? यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है क्योंकि वो जानता था कि वो कौन है और वो जानता था कि वो कहां से आया और कहां जा रहा है। यीशु मसीह को मालूम है वो कौन है, इसलिए वो नौकर बन के पांव धो सकता है। आज लोगों को मालूम ही नहीं वो कौन है, वो इनसिक्योर है। वो लोगों से अप्रूवल चाहते हैं, लोगों से वाह वाह चाहते हैं, लोगों के दिलों में राज करना चाहते हैं, लोगों की अप्रिसिएशन चाहते हैं। इसलिए अगर वो नहीं मिलती तो इनसिक्योर हो जाते हैं। इसकी रूट है रिजेक्शन। तीसरी चीज जो रिजेक्शन पैदा करती है वो है प्राइड, घमंड। मैं नहीं समझता मुझे घमंड के विषय में आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है। आपको मालूम घमंडी व्यक्ति क्या करता है? घमंडी व्यक्ति बहुत बोलता है। घमंडी व्यक्ति सोचता है हर विषय पे मुझे अपनी राय देनी चाहिए, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत इंटेलिजेंट हूं। हालेलुया। आपको मालूम घमंड तब निकलता है जब हम यीशु मसीह के चरणों से लिपट जाते हैं, तब सच्ची दीनता, सच्ची हलीमी हमारे हृदय के अंदर वास करती है। हालेलुया। आपको मालूम रिजेक्शन एक और चीज पैदा करती है, वो है इंडिपेंडेंस। आप कहते हो ओ मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, मैं अपने आप ही कर लूंगा। आप ये फील करते हो मैं सब कुछ करने में सक्षम हूं, और आप कभी भी टीम वर्क नहीं करना चाहेंगे, मिलके कुछ नहीं करना चाहेंगे किसी के साथ, क्योंकि आपके दिल के अंदर एक इच्छा है क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, मैं बहुत यूनिक हूं, मैं सुपर टैलेंटेड हूं, मैं जो कर सकता हूं कोई और नहीं कर सकता। और आप दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करते हो। आपको मालूम जो सुपर
टैलेंटेड होता है प्रभु की ओर से, हर गुण से, हर तरह की बुद्धि से, हर तरह के ज्ञान से भरा होता है, वो दूसरे लोगों को अफर्म करता है, दूसरे लोगों को भी अप्रिशिएट करता है, उनको ही रैलीज अराउंड विद एवरीवन। स्वर्ग का राज्य टीम वर्क है। हालेलुया। तो इंडिपेंडेंस की स्पिरिट नहीं। हालेलुया। और पांचवी चीज जो होती है रिजेक्टेड इंसान के अंदर, रिजेक्टेड बंदा बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाता है, बहुत टची होता है, उसकी स्पिरिट इतनी टची होती है, हल्का सा कुछ कह दिया वो ऑफेंड हो जाएगा। आत्मा में चलने वाला व्यक्ति ऑफेंड नहीं होता। ऑफेंड के लिए हिंदी में लिखा है, पंजाबी में लिखा है, ठोकर ना खाओ। समझ रहे हैं आप? ठोकर खाना, ठोकर पता कौन खाता है? एक इंसान सड़क पे चल रहा जा रहा है, ऐसे ऊपर को मुंह उठा के घूमता जा रहा है, तो नीचे पत्थर आएगा, ठोकर खाएगा वो, क्योंकि वो फोकस्ड नहीं है। हालेलुया। तो हम इजीली ऑफेंड ना हो भाई और बहनों, प्रेम से भरें, जल्दी से ऑफेंस ना लें दूसरों से। अगर आप ऑफेंड होंगे तो दूसरों को ऑफेंड करेंगे आप। आपको मालूम, हर्ट पीपल हर्ट अदर्स। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे एक वर्ड है यीशु मसीह जो यूज करते हैं, ब्रूज। लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में मैंने इसके ऊपर आपको पहले बहुत कुछ बताया है, यशायाह नबी की पुस्तक से। ब्रूज क्या होता है? ब्रूज एक गहरा जख्म होता है, आपकी चमड़ी के नीचे एक घाव होता है, अंदर से जो मसल पुल हो चुके होते हैं, टिश्यूज क्रैक हो चुके होते हैं, एक नीचे घाव होता है आपकी स्किन के नीचे। तो आपकी स्किन कई बार ऊपर से चंगी हो जाती है, लेकिन नीचे जो मसल होता है, टेंडन होता है, लिगामेंट होता है, जो फ्लैश होता है आपका नीचे, उसके जो जॉइंट्स होते हैं या ब्लड कैपिलरी होती हैं, वो अभी हील नहीं हुए होते। बाहर से चमड़ी हील हो जाती है, लेकिन जब कोई ऐसा हल्की सी चोट लगती है ना उस जगह, आए चीख पैदा होती है। क्यों होती चीख पैदा? क्योंकि अंदर अभी भी वो खून रिस रहा है, जख्म अभी हरा है अंदर। हालेलुया। आप अंदर से ब्लीड करते हो। ब्रूजेस, यीशु मसीह को ब्रूज किया गया, गहरे घाव खाए यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने इंटरनली ब्लीड किया, यीशु मसीह के ऑर्गन ब्लीड किए अंदर से। यीशु मसीह के अंदर खून की धारा बह निकली अंदर, आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। रिजेक्शन ये सब चीजें पैदा करता है, लेकिन खुशखबरी कर सकता है। लोगों में रिजेक्शन की वजह से क्या पैदा होता है? एक्सेसिव शाइनेस पैदा होती है और लोनलीनेस, क्रॉनिक लोनली रहना पसंद करते हैं। You know, people are haunted by a kind of a disposition of loneliness. They cherish loneliness. They have a personality that you call melancholy. They have melancholy attitude. The reason is, deep down in their psyche, in their sukhoi, in their soul person, rejection runs rampantly. They are victim of the past rejection, and that spirit of rejection has taken deep hold on the inside of them, and that is making them become lonely. लोनली हैं, उचाट हैं, विराट हैं, एक्सेसिव शाइनेस या लोनलीनेस है रिजेक्शन की वजह से। और एक सातवीं चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो रिजेक्शन पैदा करती है। बहुत सारे लोग जो रिजेक्ट हुए होते हैं अपनी लाइफ में, वो लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं और मैनिपुलेट करना चाहते हैं। बहुत सारे पासवान स्पिरिचुअल लीडर असल में कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब वो बोलते हैं ना, बी ओबीडियंट अनटू द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, वो ओबीडियंस के गाब में लोगों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। दे आर कंट्रोल फ्रीक्स। स्पिरिट ऑफ कंट्रोल इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ जज़बेल, इट इज नेवर द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट आपको कंट्रोल नहीं करता है, होली स्पिरिट आपको लीड करता है जेंटली। होली स्पिरिट पीछे से पुश नहीं करता आपको कभी भी, होली स्पिरिट जेंटली आपको लीड करता है। हालेलुया।
तो कंट्रोल और मैनिपुलेशन, जब आपको कोई कंट्रोल करना चाहता है और मैनिपुलेट करना चाहता है, इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में रिजेक्टेड था। स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन इसके अंदर है और ये रिजेक्ट है, इसलिए एक डिफेंस मैकेनिज्म इसने खड़ा कर दिया है। रिजेक्शन आपके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म खड़ा करेगी। आप बनाना नहीं चाहेंगे फ्यूचर में, क्योंकि आपको डर लगेगा ना मिले, कहीं फिर मुझे बिट्रेयल ना मिले। आप दीवारें बना के अपने इर्द गिर्द अपने आप को एक आइलैंड बना लोगे। ये सब रिजेक्शन करता है। या फिर आप मैनिपुलेटर बन जाएंगे और दूसरों को कंट्रोल करना चाहेंगे। किस लिए करेंगे आप दूसरों को कंट्रोल और मैनिपुलेट? ताकि आपको रिजेक्ट ना करने पाए, लेके हैंडल करना चाहते हैं। तो भाइयों और बहनों, हालेलुया, यीशु मसीह की 5 प्रकार की जो सेवकाई है, उसमें एक ग्लोरियस एस्पेक्ट है, टू हील अस इमोशनली। एवरी कंपार्टमेंट ऑफ आवर सोल जीसस वांट्स टू हील। Every scar, every wound, every stigma of the past, every relationship that you had that turned into rejection or betrayal, and every wound that your loved ones gave you, every betrayal that you went through, it is bleeding on the inside. The wound is deep. You thought it is healed. It is not. It is there inside. Jesus can set you free. He came to set us free. He came to give us true liberty, true freedom, and only His Holy Spirit can set us free. यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इन सब घावों को, आपको मालूम, आपके टूटे दिल को, हालेलुया, ब्रोकन हार्ट, सुन त्रिबो कार्दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में आपका दिल टूट के बिखर चुका है। यीशु आया है, आपके टूटे हुए दिल को अपने हाथ में उठाएगा, अपने लहू से धोएगा, पवित्र आत्मा का निर्मल जल छिड़केगा, अपने कलाम की कुव्वत से आपके दिल को ब्रांड न्यू करेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ उंडेलेगा आपके ऊपर, हालेलुया, और आपको नया कर देगा। वो आपको ब्रांड न्यू हार्ट देना चाहता है, नया दिल। आइए आंखें बंद करें। टुटे दिल दी तू दवा है, हर मरज दी तू शिफा है, थां लुकण दी है यहोवा, कहंदे जाइए यसू 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 यसू, जप दे जाइए तेरे नाम तो शाना वाले वारी जाइए। Father, I pray for each and every person, Lord, that you will mend their hearts in the name of Jesus. I pray for Danish, that you touch this man. I pray for Sahil, that you touch him and his household. Lord, I pray for Harpal Bajwa, and I pray for Daisy V.S. I pray for Devinder Kular and her household. I speak blessing and anointing and healing over her household. I pray for Jaswant Singh, for Bobby Art, Lord, for your mighty hand to rest upon them. I pray for Sukhdev Singh Sidhu, that your hand be upon this gentleman. I pray for Angela Droch, for your mighty hand to rest upon her. I pray for Brother Ravi Prakash Gupta. Lord, I pray for Sunita Kaur, your daughter in Britain. I pray, Lord, for Anil Kochar, that you bless this gentleman. Lord, I pray for Brother Raman and his household. I pray for Harjeet Singh, Lord. Hallelujah. Lord, I pray for Ruby Sangera and her household. I speak your blood over them. Bless Harjeet Singh and his wife, Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. Bless Sunita Nar, your daughter. Lord, I pray for Sunita Guria Kansavar, Lord, that your hand, that your blessing be upon her. Over Gurdeep Singh, Lord God. Over Brother Lalit, Brother Raman, everybody, Lord, I cover each and every person under the blood of Jesus.
तेरे खून के साए के नीचे तेरे एक एक जन को मैं छिपाता हूँ, तेरी आशीष तेरी बरकत के साथ एक एक को बांधता हूँ, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं शाम को फिर आपसे एक छोटा सा संदेश बांटेंगे। और शाम को आज मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। बाइबल की 66 किताबों के नाम लिखिए। प्लीज़ 5-6 दिन में पूरी बाइबल की 66 बुक्स के नाम आपको याद करने हैं। एक्सक्यूज मी, पूरी बाइबल के, हालेलुया, माय फोन फेल डाउन, पूरी बाइबल के 66 पुस्तकों के नाम हमें याद करने हैं। चार्ट बना के उन पे लिखिए और मेमोराइज कीजिए, ताकि आप फटाक से जो भी रेफरेंस दिया जाए उसे खोलें। और यदि आप में से कोई किसी के दिल में प्रभु डाले, आप प्रभु के लिए बीज बोना चाहते हैं, ऑफरिंग देना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। हम भेंटों को, ऑफरिंग्स को प्रभु के काम में लगाएंगे। प्रभु आपके दिल में डाले, काइंडली लेट मी नो, तो मैं आपको बता दूंगा। आप अपनी भेंटें यीशु मसीह के लिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए बो सकते हैं। प्रभु हम रजनी देवी को आपके लहू में छिपाते हैं। प्रभु आपके खून में एक एक जन को मैं छिपा देता हूँ। खुदावन आशीषित करें यीशु मसीह आपके जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। मुझे मैसेज कर दीजिएगा अगर आप कोई प्रभु के लिए भेंट बोना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया।